Welcome, dear student. Today we are going to discuss partnership accounts. Today's topic is sum number 8. In that we discuss the preparation of partnership account as per fluctuation capital accounting method. Whenever we have to calculate the sum as per fluctuating capital accounting method, then how we can prepare the accounts that we are going to discuss today? Sum number 8. Harpal and Chirag are the partners of a firm. On 1st April 2016, their capital is rupees 60,000 and rupees 1 lakh respectively. During the year, on 1st April 2016, Harpal has withdrawn rupees 15,000 and Chirag has withdrawn rupees 20,000 on 1st January 2017. Provision of partnership deed are as follows. First, provide 12% per annum interest on capital. Second, charge 9% per annum interest on drawings. Third, rupees 1,000 per month are payable to Harpal for his active role in the firm, while 5% commission of divisible profit is payable to Chirag. On 1st December 2016, Harpal has given a loan of rupees 30,000 to the firm. There is no provision for interest on loan in the partnership deed. He claimed 11% interest on his loan. The profit of the firm on 31st March 2017 was 79,400 rupees before above mentioned provision but after charging interest on loan of Harpal. From the above information, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. So friends, यहाँ पे हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं. एक अकाउंट बनाना है profit and loss appropriation account. Let's see friend how we can prepare profit and loss appropriation account. So profit and loss appropriation account of partnership firm of Harpal and Chirag for the year ending on 31st March 2017. On the debit side we write particulars rupees, on the credit side we write particulars and rupees. And also we prepare partners capital account. So partners capital account, on the debit side we have date, particulars, Harpal and Chirag. Credit side also we have date, particulars, Harpal and Chirag. Now friends, one by one we will record the information in the partners capital as well as profit and loss appropriation account. Now friends, the sum it is given to you that Harpal and Chirag are the partners. On 1st April 2016, their capital is 60,000 and 1 lakh rupees respectively. That is the opening balance of their capital account. ये इनके capital account का opening balance है. Opening balance we will write in the capital account on the credit side. We will write on 1st April 2016 by balance brought down. That is opening balance of the capital. 60,000 rupees Harpal and 1 lakh rupees Chirag. So Harpal का balance है 60,000 and Chirag का balance है 1 lakh rupees. So that is their opening balance. ये इनके opening balances आ गए. Now on 1st April 2016, Harpal has withdrawn 15,000 and Chirag has withdrawn 20,000 on 1st January 2017. यहाँ पर Harpal and Chirag दोनों ही withdraw करते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग डेट को withdraw करते हैं.
हरपाल 15,000 रुपीज विड्रॉ करता है 1 अप्रैल 2016 को। जब भी कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा, that drawings we will write on the debit side of his capital account. तो ड्राइंग्स को हम उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। On 1st April 2016, drawings account withdrawn by हरपाल। So हरपाल के कॉलम में हम लिखेंगे 15,000 rupees. And as you know, Chirag has withdrawn 20,000 on 1st January 2017. तो 1st जनवरी 2017 को हम यहाँ पे डेबिट साइड में अगेन लिखेंगे ड्राइंग्स एंड चिराग के कॉलम में लिखेंगे 20,000। बिकॉज यहाँ पे अलग अलग डेट को दोनों पार्टनर विड्रॉ करते हैं, इसलिए हमने उसकी एंट्री भी अलग अलग लिखी है, राइट। एक हरपाल विड्रॉ करता है 1st अप्रैल को 15,000 एंड चिराग विड्रॉ करता है 1st जनवरी को 20,000। सो कैपिटल हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया एंड ड्राइंग्स हमने डेबिट साइड में लिख दिया। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर दिस कैपिटल एंड ड्राइंग्स, here it is given that provision of the partnership deed is as follow। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप डीड में हमने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो दिया हुआ है। फर्स्ट है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे हमें 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट बिफोर राइटिंग ऑल दीज प्रोविजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट व्हिच इज गिवन टू यू is to be transferred in the profit and loss appropriation account. Here it is given to you friends that the profit of the firm on 31st March 2017 was 79,400. This 79,400 is our profit. This profit we will write here on the credit side. यहाँ पे credit side में लिख देंगे profit and loss account, net profit. Amount is 79,400. So friends, as you know, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट 79,400 that we write here on the credit side of profit and loss appropriation account. Now let's see friend one by one जो आपको पार्टनरशिप डीड के रूल्स दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट पर एनम ऑन कैपिटल। कैपिटल पे हमें 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स आपके पास कैपिटल है 60,000 एंड 1 लाख, उसके ऊपर 12% गिनेंगे। 60,000 इंटू 12%, that is interest on capital। 60,000 का 12% and 1 lakh rupees का 12% interest on capital। Interest on capital is expense for partnership firm। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हरपाल की कैपिटल है 60,000, उसका 12% यानी 7,200। चिराग उसकी कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख, 1 लाख पे 12% मीन्स 12,000। So interest on capital is 7,200 and 12,000. Total करेंगे, so it is 19,200. This 19,200 is interest on capital, that is expense for partnership firm. But it is income for partner, लेकिन partner के लिए ये income है। So the second effect of that interest on capital is in the capital account on the credit side. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ऑन 31st मार्च 17 वी राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 हरपाल का एंड 12,000 चिराग का। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने दो इफेक्ट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Now friends, after interest on capital, second adjustment is charge 9% per annum interest on drawings।
पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया है उस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. So interest on drawings, as you know friend, हरपाल has withdrawn 15,000 rupees on 1/4. 1st April को उसने 15,000 withdrawn किया है. उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट अ रेट ऑफ 9%. एंड चिराग ने 1st जनवरी को विड्रॉन किया है 20,000. उस पे हम 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 3 मंथ, 1st जनवरी से 31st मार्च. So interest on drawings, that is income for partnership firm. पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम है. So we write it on the credit side. Interest on drawings. हरपाल 15,000 रुपीज विड्रॉन करता है ऑन 1st अप्रैल 2016. तो उसके ऊपर 9% से पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 15,000 का 9% यानी 1,350. सेकेंड पार्टनर इज चिराग, वो 20,000 विड्रॉ करता है. वो कब विड्रॉ करता है? 1st जनवरी को. तो 1st जनवरी से 31st मार्च, जनवरी, फरवरी एंड मार्च वी विल कैलकुलेट फॉर 3 मंथ. 20,000 पे हम 9% से 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 450. So 1,350 हरपाल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड 450 चिराग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल करेंगे. So it is 1,800. This interest on drawing is income for partnership firm, but it is expense for partner. पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस होता है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. 1,350 हरपाल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड 450 चिराग का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनर. पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस है एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वी कैलकुलेटेड. नाउ थर्ड provision is rupees 1,000 per month are payable to Harpal for his active role in the firm. हरपाल को हर महीने 1,000 हमें फर्म में से सैलरी देना है. तो सैलरी देंगे हरपाल को, दैट इज द एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म. ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे सैलरी टू हरपाल 1,000 पर मंथ. तो पूरे साल का कितना, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो. 1,000 multiply by 12, so that is 12,000. So salary to Harpal is 12,000. This salary to Harpal is expense for partnership firm, but it is income for Harpal. हरपाल के लिए ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी. तो हरपाल के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे सैलरी. हरपाल के कॉलम में 12,000, चिराग के कॉलम में डेस्क. तो यहाँ पे हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, हरपाल को सैलरी दे रहे हैं. वो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली काम करता है. सो पर मंथ 1,000 रुपीज सैलरी हम उसको देंगे. 1,000 पर मंथ सैलरी देंगे. सैलरी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट साइड लिखा. एंड पार्टनर के लिए इनकम है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12,000 rupees. Now friends, here it is given that while 5% commission on divisible profit is payable to Chirag. अब हम चिराग को 5% कमीशन देंगे. Now how to calculate commission? कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे. लेट्स मेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड and debit side in a rough.
वर्किंग नोट में हम इसका टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करो एंड डेबिट साइड का टोटल करो टू फाइंड आउट द कमीशन पेबल टू द पार्टनर। सो फ्रेंड्स, टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 81,200। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड का टोटल करें, इन दोनों का टोटल, तो ये आएगा 81,200। नाउ वी मेक अ टोटल ऑफ द डेबिट साइड। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आएगा, टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज 31,200। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो 50,000 आया। ये 50,000 आया डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको सम में कहा था फ्रेंड्स कि हमें चिराग को 5% कमीशन देना है ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब चिराग को इस डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन देंगे। सो वी कैलकुलेट 5% ऑफ दिस 50,000, दैट इज चिराग्स कमीशन। चिराग का कमीशन 50,000 का 5%, 50,000 into 5 by 100, so it is 2,500। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिंपली ऐसा बोला है 5% कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। सो जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका 5% कमीशन कैलकुलेट किया। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो 50,000 आया डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 5% गिना तो 2,500 आया। दिस 2,500 इज कमीशन टू चिराग, दैट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे कमीशन टू चिराग 2,500। 2,500 we will write on the debit side। फर्म के लिए एक्सपेंस, लेकिन चिराग के लिए ये इनकम हो जाता है, तो चिराग के लिए इनकम, सो वी राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे कमीशन, चिराग के कॉलम में 2,500। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पार्टनर चिराग का कमीशन कैलकुलेट किया एंड वी आर गिवन द डबल इफेक्ट ऑफ दैट। सो कमीशन टू अ पार्टनर, दैट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, एंड दैट इज इनकम फॉर चिराग, सो चिराग के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर दैट one more paragraph is given to you that on 1st December 2016 Harpal has given a loan of 30,000 to the firm। हरपाल ने 30,000 की लोन फर्म को दिए। डेट लोन इज अवर लाइबिलिटी, ये हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए ये लोन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। दिस लोन इज टू बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन पार्टनरशिप डीड। He claimed 11% interest on his loan। पार्टनर्स की लोन पे कोई भी इंटरेस्ट रेट दिया नहीं, लेकिन पार्टनर ये चाहता है, हरपाल ये चाहता है कि उसे 11% इंटरेस्ट मिले। फ्रेंड्स, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, if there is no provision regarding interest on loan of a partner, then we will give 6% interest on loan। हम लोन पे कितना इंटरेस्ट देते हैं? 6%। सो 11% इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अवर एक्सपेंस एंड दैट्स व्हाई वी विल राइट इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हम इसको कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। इसलिए इस पैराग्राफ की कोई भी एंट्री यहां पर नहीं आएगी। प्रॉफिट हमने पहले ट्रांसफर कर दिया है, उसके सिवाय न लोन की कोई एंट्री आपको करनी है, न ही इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई एंट्री आपको करनी है। सो फ्रेंड्स, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई एंट्री
हम यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, बाकी की सारी एंट्रीज जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती थी वो हमने लिख दी। फ्रेंड्स, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ फर्म रिलेटिंग टू पार्टनर। पार्टनर से रिलेटेड पार्टनरशिप फर्म के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये सब डेबिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनकम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिलेटिंग टू पार्टनर। पार्टनर से रिलेटेड पार्टनरशिप फर्म की जो भी इनकम है वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाते हैं, जिसमें हम पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स लिखते हैं। Now friends, all the entries we are recorded in profit and loss appropriation account. Now let's make a total of it. अब हम इसका टोटल करेंगे फ्रेंड्स। सो क्रेडिट साइड का टोटल 81,200, उसमें से डेबिट वाला ये टोटल माइनस करेंगे इंक्लूडिंग कमीशन, ये तीनों का टोटल करके 81,200 में से माइनस करेंगे, सो इट विल बी 47,500। This 47,500 is our divisible profit. इसको हम बोलेंगे divisible profit. And this divisible profit is distributed among the partner Harpal and Chirag in their profit and loss sharing ratio. And what is their profit and loss sharing ratio? Their profit and loss sharing ratio is not given in the sum. आपको सम में दिया नहीं है कि how they are distributing their profit and loss. So as per Partnership Act 1932, if no information is given about their profit and loss sharing ratio, then we assume that profit will be distributed among the partner in equal proportion. तो यहाँ पे हम दोनों पार्टनर हरपाल एंड चिराग के बीच में ये डिविजिबल प्रॉफिट 47,500 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हरपाल विल गेट 23,750 एंड चिराग विल गेट 23,750। दिस डिविजिबल प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। डिविजिबल प्रॉफिट 23,750 हरपाल के कॉलम में एंड 23,750 ही हम चिराग के कॉलम में लिखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस डिविजिबल प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट्स मेक अ टोटल ऑफ इट। अब हम इसका टोटल करेंगे। लेट्स मेक अ टोटल ऑफ हरपाल। सबसे पहले हम पार्टनर हरपाल का टोटल करते हैं फ्रेंड्स। हरपाल का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है एंड हरपाल का क्रेडिट साइड का टोटल है 1,02,950। 1,02,950 क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट वाला माइनस करेंगे 16,350, इसमें से माइनस कर देंगे। सो द बैलेंस इज 86,600। 86,600 आया हमारा बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आया ऑन 31 मार्च 2017। ये हमने हरपाल का टोटल किया फ्रेंड्स। अब हम टोटल करेंगे चिराग का। लेट्स मेक अ टोटल ऑफ चिराग क्रेडिट साइड फर्स्ट। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,38,250। 1,38,250 में से डेबिट वाला माइनस कर देंगे, 20,450 माइनस हो जाएगा, सो 1,17,800। 1,17,800 ये आया बैलेंस ऑफ चिराग। चिराग के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 1,17,800। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल आएगा, बाकी सब में 31 मार्च आएगा। Your drawings we made on 1 April and 1 January.
सो जिस दिन ड्राइंग्स किया है वो डेट आई, बाकी के ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट में हम 31 मार्च 17 लिखते हैं, because all the adjustment we will do at the end of the year, that is on 31st March 2017. Friend, this is the sum as per fluctuating capital accounting method. ये जो sum आपने सीखा फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं fluctuating capital accounting method. Why it is fluctuating capital accounting method? Because the opening balance of the capital and closing balance of the capital fluctuates. आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस में एंड क्लोजिंग बैलेंस में चेंजेस है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड. तो जिस अकाउंट्स में ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस डिफर हो जाता हो, चेंज हो जाता हो, फ्लक्चुएट हो जाता हो, उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड.